ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زباں اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ پروگرام ہے ہمدردی، اور آج ہم ایک ایسے اسلامی بھائی کے گھر موجود ہیں جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، مگر حوصلے جوان ہیں، حوصلے بلند ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک نہیں بلکہ دو کام کرتے ہیں، اور کیا دو کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، ان سے تاثرات لیں گے، اور اسی دوران انہیں خوش کرنے کے لیے ایک عمل کریں گے۔ کیا عمل ہوگا آپ دیکھیے سلسلہ ہمدردی میں۔ آج ہمیں انشاءاللہ کراچی کے علاقے لانڈھی عبد المجید کالونی وہاں جانا ہے۔ اب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کس کے گھر پہ جانا ہے، کیونکہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ایک اسلامی بھائی کو تلاش کیا ہے کہ جن کے گھر پہ ہم نے جانا ہے، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ میری پوتی مشکات فاطمہ بھی ہیں، اور یہ بھی میری گرینڈ ڈاٹر، میری پوتی جو ہے وہ مشعل فاطمہ ہے ماشاءاللہ، ابھی اسی مہینے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، ماشاءاللہ بھی کہہ دیجیے گا۔ تو اب انشاءاللہ نکلتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کو راستے کے بھی کچھ حالات بتائیں گے، وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں کس کے گھر جانا ہے، ان کے کیا حالات ہیں، اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ۔ مجھ کو اگر مل جائے رب تیری رضا۔ ہمدردی سلسلہ ہے ناظرین، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کسی کی دل جوئی ہوگی، بڑی امید ہے کہ جب ہم ان کے گھر جائیں گے تو ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ تو بیمار بھی ہیں سنا ہے، تو عیادت کی نیت بھی کر لیتے ہیں، سنت ہے عیادت کرنا، اور تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو ہم نے تحفہ بھی ان کے لیے لے لیا ہے انشاءاللہ، تو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ گھر میں جو لوگ ہوں گے ان کو سلام بھی کریں گے، یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ نیکی کی دعوت انشاءاللہ ان کو پیش کریں گے، اور کوئی ایسی بات سمجھانے کی ہوئی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال، کرم ہے اللہ عز و جل کا۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ والد صاحب آپ کے بتا رہے تھے میرے خیال میں 34 سال کے قریب عمر ہے۔ ہاں 34 سال ہے ہماری عمر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ جو معاملات ہیں، بینائی آپ کی چلی گئی؟ اس ٹائم میری 11 سال کی عمر تھی، تو میں کھیل رہا تھا، ہمارے ساتھ ایک دوست تھا، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو بس کھیلتے کھیلتے میں ایک نوجوان آ گئے تھے، جیسے ابھی ہماری عمر ہے نا، ایسے نوجوان کی عمر تھی، تو اس نے کھیلا، گلی اٹھا کے کٹ شاٹ مارا نا، تو اس کا وجہ سے ڈائریکٹ آ کے میری آنکھوں میں لگ گئی۔ دکھاؤں، اس میں اس آنکھوں میں لگی تھی، سر یہ بہ گئی، اس کا وجہ سے اس میں جرف آ گئی جی۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد پھر اس آنکھوں کا آپریشن وغیرہ کیا، تو زخم سکھانے کے لیے انجیکشن لگایا، پھر دوائی وغیرہ دیا، تو زخم کو تو ساتھ ساتھ سکھاتے جو ہاتھ میں جو دروازہ کا نیچے انگلی وغیرہ آ جاتا یا چھالا نہیں پڑ جاتا، تو وہ نس میں چھالا پڑ گیا تھا نا، تو اس کا وجہ سے نا وہ جو خون رکا ہوا تھا نا، تو زخم کو بھی ساتھ ساتھ سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا جو خون تھا اس کو بھی سکھا دیا، یعنی کہ نس کو بھی سکھا دیا۔ ہماری نیت یہی ہے کہ ہم اس طرح کے جو سلسلے کر رہے ہیں، ایک تو جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی دل جوئی تو ہے، لیکن مایوس لوگوں میں سے مایوسی ختم کی جائے، اور دوسرا یہ میسج دیا جائے کہ ہمدردی کرنی چاہیے، وقت نکال کر کسی کے گھر پہ جانا چاہیے۔ میں فیضان مدینہ کے قریب رہتا ہوں، اور اب یہاں سے ہم لانڈی جا رہے ہیں، تو اٹس ٹیک لانگ روٹ، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ میری والدہ مرحومہ کی قبر شریف بھی آ گئی ہے، تو سلام بھی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، تم سلفنا من حمد اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم والدہ کی اور والد صاحب کی مغفرت فرمائے، کہ درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب کریم کروٹ کروٹ میں جنت کی نعمتیں عطا فرما، ہمیں بھی ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی دے، اور آخری وقت ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ فل کوشش کیا، ہمارے گھر والے نے فل کوشش کیا، جہاں جہاں جا سکتے تھے، مطلب کہ مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ کراچی کے اندر جتنا بھی
आई हॉस्पिटल था, सब जगह मैंने हमने किया। तो जब इनका ये मामला हुआ उस वक्त आप मौजूद थे घर पे, कैसे आपको पता चला, किसने? नाइट ड्यूटी करके मैं आया था घर पे, सोया हुआ। अच्छा। सोने के बाद ये क्या किया, बच्चा था, बिस्तर से उठ उठ के चला गया खेलने के लिए। अच्छा, जैसे आपकी आंख लगी उठ के बाहर खेलने चले गए, हाँ, फिर ये हादसा हो गया। तो ये हादसा हो गया, तो मैं सोया हुआ था। थोड़ा देर के बाद खबर सुन रहा है कि बोले इसको लेके अस्पताल को लेके गया। मतलब आपने जितनी कोशिश करनी थी अपने तौर पर कोशिश हाँ, करी, लोगों से कर्ज भी मांगा, मैं अपना डॉक्टर्स भी चेंज किए, इसके पीछे जितने मैंने पैसा खर्चा किया है कि रात दिन मेहनत करके फिर भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। मेरा एक सारू था, डॉक्टर से बात किया, बोले अगर आंख लगा दिया जाए। दूसरी आंख, नकली आंख? हाँ। अच्छा, फिर? आसमान नाम था मेरे सारू का, बड़ा सारू है। उसने बोला कि हम एक आंख दे दे रहे, हम बोले मेरा एक आंख ले ले, दोनों सही है, जवान होते रहेगा। फिर आप एक और हॉस्पिटल गए? हाँ। और मतलब कहीं से भी मसला हल नहीं हुआ? कहीं से मसला हल नहीं। चले, डॉक्टरों ने मायूस कर दिया है? मायूस कर दिया। उसके बाद फिर भी मेरा घर वाले भी कोशिश किया, मैंने भी कोशिश किया। हम बोले भाई, हमने इतना भी डॉक्टर को बोला था कि देख मेरा रहने का ठेक है, मैं पूरा जगह दे दूंगा। अल्लाह अल्लाह, बस किसी तरीके से आंखों की रोशनी, उसका आंख का रोशनी दे दे। अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये देखिए, ये होता है बाप का जज्बा कि एक जवान बेटे की आंख जाया हो गई, उस आंख को पाने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाए, न जाने कौन कौन से डॉक्टरों के पास गए, अस्पतालों पे गए, लोगों के पास जाकर कर्ज मांगा, इवन के यहाँ तक आ गए कि मैं ये घर बेच दूंगा और मेरे घर का साया जो है भले चला जाए मगर किसी तरीके से मेरे बेटे की आंख आ जाए। तो वो बेटे जो अपने वालिदैन से बदतमीजी कर बैठते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वो देखें बाप क्या चीज है। और हकीकत बात है कि आपको ये एहसास उस वक्त होगा जब आप खुद बाप बनेंगे। आज दरअसल जो मुझे बताया गया कि कोई नाबीना इस्लामी भाई हैं, यंग हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े हौसले वाले हैं और बहुत कुछ वो काम करते भी हैं। तो हमारी मजलिस ने उनको सेलेक्ट किया था, तो आज उनके पास जाते हैं। वाकई आंख कितनी बड़ी नेमत है, बीनाई कितनी बड़ी नेमत है, ये नाबीना से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। जो नाबीना हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे वो हदीस पाक याद आ रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों की आंखें ले लेता है, यानी जो नाबीना होते हैं और अल्लाह की रज़ा पर वो राज़ी रहें, तो अल्लाह क़यामत में उन्हें अपना दीदार अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कि जब आप इस आजमाइश में आ गए, आपके वालिद साहब ने बहुत मेहनत की और जब कहीं से भी आपको आराम नहीं आया, तो फिर आपके ज़हन में क्या था, क्या प्लानिंग थी कि अब तो मेरी एक आंख ज़ाया हो गई है और अब मतलब मैं ना देख सकता, पहले मैं देख सकता था, मैंने सब कुछ देखा और अब मेरी आंखों की बीनाई चली गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, लोगों के सामने किस तरह जाऊंगा, अपनी आगे की जो जिंदगी वो किस तरह गुजारूंगा? आपके क्या जज्बात थे उस वक्त? तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, उस टाइम मैंने सोचा तो जिंदगी तो हो ही गया ऐसा। सबसे पहले मैंने तो लौ लगाया अल्लाह के घर का, मस्जिद का, नमाज वगैरह पढ़ा। नमाज तो ये बचपन से पढ़ रहा है। अच्छा, ये नमाज का बहुत पाबंदी था। हाँ, और माशाल्लाह थोड़ा सा नजर भी आ रहा था। अच्छा, उस वक्त दोनों आंखें आपकी चली गई थी या एक थी, एक गई थी? एक आंख पहले मुझे वो तो खत्म हो गई ना, ये तो चला गया। फिर ये जो दूसरी आपकी आंखें उल्टे हाथ वाली, हाँ, तो ये फिर इसमें से नजर आता था आपको? इसमें वो था ना, मोतिया था? हाँ जी, बचपन में ही मोतिया था आंखों में? हाँ बचपन में। अच्छा, तो फिर अब कम नजर आता था आपको इसमें? हाँ। अच्छा, अब जब आपने देखा कि जिस आंख से आपको ज्यादा नजर आता था वही आंख चली गई, मामूल क्या था आपका? आप घर से निकलते थे तो फिर किस तरह, कोई लेके निकलता था या खुद ही निकलते थे, सहारा लेते थे, क्या करते थे उस वक्त आप? तो खुद निकलता था, खुद कोशिश करता था, ऐसे कब तक किसी का सहारा बनूंगा, कब तक किसी का सहारा लूंगा। घर वाले रोकते थे मगर आप निकल जाते थे? हाँ जी। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। अच्छा साहब, मैंने आपका भी एक बयान सुना था जिसमें आपने फरमाया था कि कोई शख्स किसी बुजुर्ग के पास आया, अपने अपनी मुफलिसी का और अपनी गुर्बत का उसने अर्ज की बुजुर्ग को, तो उन्होंने कहा भैया तुम अपना एक हाथ दे दो और 1 लाख रुपए ले लो, अपनी एक आंख दे दो, 1 लाख रुपए ले लो। तो इस तरह से आपने उस बयान में जिक्र फरमाया। जी, वो वही बहुत प्यारी बात है कि लोग शिकवे करते हैं ना, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमें अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है।
تو ایک بزرگ کے پاس اس طرح کا ایک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے حضور میں بہت کمزور ہوں اور بہت غریب ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں پیچھے رہ گیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا, معاذ اللہ شکوہ کر رہا تھا. تو ان بزرگ نے بڑی کمال کی بات فرمائی, کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا, ایسا کرو کہ تم اپنی آنکھ دے دو اور مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے لے لو. اس نے کہا حضور میں تو اندھا ہو جاؤں گا. فرمایا اچھا ایک کان دے دو 2 لاکھ روپے لے لو. کہا حضور میں بہرا ہو جاؤں گا. کہا ایک ہاتھ دے دو 2 لاکھ روپے لے لو. وہ گنواتے رہے, وہ منع کرتا رہا, وہ گنواتے رہے, وہ منع کرتا رہا. آخر میں بڑی پیارا جملہ کہا کہ کمال کے آدمی ہو, کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا, لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو. تو یہ تو بولنے کی بات ہے. میں کہتا ہوں کروڑوں روپے بھی ہوں اور آنکھ نہ ہو تو وہ کروڑوں روپے کے سامنے آنکھ کی ویلیو نہیں ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کب ہوئے اور کیا ذریعہ بنا, کس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آپ آئے؟ بیت النور مسجد میں غمخوار اجتماع ہوا تھا. اچھا, تعویذات اطاریہ کے سبب جو ہوا تھا. جی, تو اس میں آیا, اس میں آ کے پھر وہاں پر ہی میں نے امامہ شریف سجایا الحمدللہ. پھر وہاں سے پھر میں نے اجتماع کا پابند بنا. پھر اس کے بعد یہ ہوا تو پھر اسی طریقے سے پھر الحمدللہ میں اپنا یہاں پر آلو پیاز کا کام وغیرہ کرتا ہوں نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں سے آپ جب صبح مارکیٹ بتا رہے مارکیٹ جاتے ہیں, مارکیٹ کتنی دور ہے یہاں سے؟ یہاں سے مارکیٹ الحمدللہ 2 منٹ کا راستہ ہے. اچھا 2 منٹ کا راستہ آپ کے لیے بھی؟ آنکھ والے کے لیے تو 1 منٹ کا راستہ ہے. اچھا, ہم جیسے کے لیے 2 منٹ کا راستہ, کیونکہ ہر چیز سنبھل کے چلنا پڑتا ہے نا. کون لے کے جاتا ہے مارکیٹ آپ کو؟ خود جاتا ہوں. خود جاتے ہیں؟ جی. لاٹھی وغیرہ استعمال کرتے, ہسا وغیرہ؟ جی, وہ چھڑی ہوتا ہے تو وہ چھڑی کو ایسے ایسے کر کے جی جی جاتا ہوں آگے. اگر کوئی چیز آتا ہے جیسے ٹھیلا آ گیا یا نیچے تو اس بائک سے حفاظت ہو جاتی ہے. یہ کرنے کے بعد پھر دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں ماشاءاللہ جاتے ہیں, الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ دعوت اسلامی سے مدنی ماحول کا واسطہ ہے ماشاءاللہ, تو مدنی چینل بھی پھر آپ سنتے ہوں گے؟ الحمدللہ. مدنی چینل پہ کیا سنتے ہیں آپ؟ الحمدللہ جتنے بھی بیان آتے ہیں بیان سنتا ہوں. مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں؟ مدینی مذاکرہ سنتا ہوں. اور الحمدللہ حاجی حبیب اتاری کا بیان وغیرہ آتا ہے وہ سنتا ہوں. پھر تو آپ ذہنی آزمائش بھی دیکھتے ہوں گے؟ الحمدللہ عز و جل. ناظرین ایک کام کرتے ہیں, ایک پریکٹس کرتے ہیں, جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں کچھ سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں. ڈرائیور بھائی نہ کریں ورنہ گاڑی بھی چلا رہے ہوں, اس آنکھ کے سامنے کروڑوں روپے کی ویلیو. آنکھ بند کریں اور کچھ سیکنڈز کے لیے, میں نے بھی بند کی, آپ بھی بند کریں اور اب کھول لیں. جس وقت آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کی اس وقت آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ اندھیرا, بلیک. ذرا غور کیجئے کہ کچھ سیکنڈز کے لیے جو اندھیرا میری اور آپ کی آنکھ کے سامنے تھا وہ اندھے کی, نابینا کی زندگی میں ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. وہ آل لائف, پوری لائف اس اندھیرے میں گزارتا ہے. میں اور آپ ساری زندگی صرف آنکھ کا ہی شکر ادا کریں نا تو بھی نہیں کر سکتے. تو باقی جو اعضاء ہیں, زبان ہے, کان ہے, اللہ نے نعمتیں دی ہیں. اللہ مجھے بھی شکر گزار بنائے اور آپ کو بھی بنائے. نبی پاک کی وہ دعا ہے نا, یعنی پیارے آقا سے بڑا شکر گزار کون ہے؟ مگر یہ ہماری تعلیم کے لیے کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا خوبصورت دعا, یعنی اللہ کے حبیب اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک, تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں اور تیری بہترین بحسن عبادت. اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسے بن جائیں. یہ بتائیے کہ ذہنی آزمائش میں آپ دیکھتے ہیں حاجی حبیب کو بھی دیکھتے ہیں, آپ ان کے بیانات بھی سنتے ہیں, کوئی ایسی ان کا انداز, کوئی ان کا مطلب ان کا لفظ جملہ جو آپ کو پسند آتا ہو؟ آپ کا جواب درست ہے. یہ کس کا انداز ہے؟ سبحان اللہ, حاجی حبیب اتاری. یہ ہے حاجی عبدالحبیب. اچھا یہ بتائیے کبھی حاجی عبدالحبیب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی, یہ اپنا عبداللہ گوٹ میں اجتماع ہوا تھا, اس دن ان سے پہلی وہ ملاقات تو لائن میں لگ کے ملاقات ہو گئی تھی نا. کبھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں. ابھی بات کرنا چاہیں گے ٹیلی فون پہ؟ نہیں, دل کی کیفیت ایسی ہو رہی کہ میں کیا بات کروں. چلے حاجی عبدالحبیب کو میسج کرتا ہوں, اگر فون آ جائے ان کا, میں عرض کرتا ہوں, میسج کرتا ہوں, مس کال بھی مارتا ہوں. دیکھیں مدنی چلے کے ناظرین رکن شورا سے محبت کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان محبت کرنے والے کی جو ہے عبدالحبیب سے ٹیلی فون میں بات کرواتے ہیں. مس کال مارتے ہیں, کیونکہ فون کروں گا تو مصروف ہوں گے, مس کال مارتا ہوں تو شاید دیکھ لیں, تو ہو سکتا ہے کہ فون کر لیں اور آپ کی ٹیلی فون پہ بات ہو جائے. کیا کہیں گے عبدالحبیب بھائی کو آپ؟ اگر ٹیلی فون پہ بات ہو جائے, چلو مس کال تو چلی گئی ہے, اگر ٹیلی فون پہ بات ہو جائے کیا کہیں گے آپ ان کو؟ تو چلیے ان کو یہی کہوں گا, سب سے پہلے تو میں ان کو سلام کروں گا,
अल्लाह पाक हिफाजत में रखे। अपने लिए क्या कहेंगे? वो तो आप दुआएं दे रहे हैं उनको, उनसे क्या लेंगे आप? उनसे क्या लेंगे, बस आप जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश आबाद भाई ये रखे। तो आपने दुआएं दे दी ना उनको, जी अब आपको भी तो कुछ लेना है ना उनसे। क्या लेंगे आप उनसे? आपने सारी दुआएं उनको दे दी तो उनसे क्या दुआएं लेंगे? उनसे नहीं, क्या अपनी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश का इजहार करेंगे? मुझे अगर उनको पसंद हो ना और मेरी टेलीफोन में बात हो जाए तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं होगी यार। जी जिससे मैं, मेरे फेवरेट बंदा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ टेलीफोन पे और डायरेक्ट में बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं सुनता था आवाज, अब मैं सलाम कर रहा हूँ तो वहां से जवाब आ रहा है। जी सुभान अल्लाह, क्या क्या मतलब क्या फीलिंग होगी इसकी? बहुत अच्छी फीलिंग होगी। फिर आप उनको बोलेंगे क्या, ये तो बताएं। यही बोलूंगा, आप कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अब्दुल हबीब भाई ने हमारी कॉल देखी होगी ना, और अगर वो कोई मसरूफ नहीं होगा तो जरूर उनकी कॉल आएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप अब्दुल हबीब को पता है क्या कहिएगा? हजरत आप हमेशा, हम तो टेलीविजन पे आपकी आवाज सुनते हैं, आज आप टेलीफोन पर, टेलीविजन पे नहीं, टेलीफोन पे कोई मदनी फूल देते हैं। सुभान अल्लाह, तो उनसे ये भी दुआ करना चाहता था, हमारे लिए भी दुआ कर दे कि हम भी मदीने चले जाएं, आमीन हमें ईमान पर खात्मा मिल जाए। आमीन। ये सारी दुआएं करवा देना, देखिए मौका फिर कभी कभार ही मिलता है। हाँ तो ये इस सिलसिले के डायमेंशन जो मैं बता रहा था कि एक तो जिसके घर गए उसकी खुशी, हम जो लोग जाते हैं हमारी अपनी एनर्जी बढ़ती है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि नाजरीन जो है इससे सबक हासिल करें कि हमें किस तरह दूसरों के साथ मदद करना है और अपनी मुश्किलों में अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना है। तो अगर ये तमाम चीजें होने लग जाएं तो फिर तो हमें लगेगा हमारा सिलसिला अल्लाह की रहमत से वसूल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी फैज हम सब पर अता फरमाए। ये तो टेलीफोन पे बात की होगी ना, अल्लाह का टेलीफोन बात हो जाए। अगर किसी दिन अब्दुल हबीब भाई आपसे मुलाकात के लिए आ जाए तो क्या बात है, तो मैं सोचूं कहाँ इनको बैठाऊं। अभी तो हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे टेलीफोन पे उनको बोलेंगे हजरत कभी टाइम निकाल कर अकबर अली भाई के घर भी तशरीफ ले आए, ये आपके बहुत मोहब्बत करने वाले ज़हनी आजमाइश बड़े शौक से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक मिनट मदनी चैनल के नाज़रीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब्दुल हबीब भाई की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी यूसुफ बापू, आपने कॉल की थी, आपकी मिस कॉल आई हुई थी। अरे वाह माशाल्लाह, हमारे रुकन शुरा की कॉल तशरीफ लाई। हुजूर हम एक इस्लामी भाई के घर पर बैठे हुए हैं और ये इस्लामी भाई आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश भी देखते हैं, बेचारे आंखों की बीनाई से महरूम है। तो ये कह रहे थे अगर हमारे अब्दुल हबीब भाई से बात हो जाए तो मदीना मदीना। क्या नाम है इनका? हाँ, ये आप खुद इनसे डायरेक्ट बात करें, स्पीकर ऑन है जी अकबर भाई जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे मेरा हैं आप, नाम ठीक है? मोहम्मद अकबर अत्तारी है। अच्छा, जी और आपका नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी बताया आपने। जी चलें, क्या करते हैं आप? जी मैं आलू प्याज का दुकान में ना काम करता हूँ भाई। आप सुनाइए, आप कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। अल्लाह पाक आपको और मजीद बरकत दे। आइए ना कभी हमारे गरीब खाने में भी तशरीफ लेके आइए। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 1। अच्छा, ये कौन सा एरिया है मस्जिद कॉलोनी? सेक्टर 1 लांडी। अच्छा, लांडी में। अच्छा अच्छा जी। तो लांडी तो ये कोरंगी से आगे वाला एरिया है ना, कायदाबाद। जी अच्छा, तो मुझे फिर आप कैसे पहचानते हैं? आपने तो देखा ही नहीं होगा। बस मैं आवाज से पहचान लेता हूँ, ये जैसे जैसे मैं अभी आपका आवाज पहचाना हूँ। हाजी हबीब अत्तारी है। आप अब्दुल हबीब भाई से बात कर रहे हैं, जी पता है आपको, आपके लिए खुशखबरी है। जी ये लीजिए, आपके बराबर में अब्दुल हबीब भाई तशरीफ लाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक मदीने पाक के बार बार मीठा मीठा हाजिरी नसीब फरमाए। दोनों जान की भलाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल करम अज़्ज़ा वजल। बैठिए, आप बैठे बैठे आप बैठे बैठिए मैं ना। आपके साथ ही बैठता हूँ, आपके साथ ही बैठता हूँ। आपसे तो मिलने आया हूँ मैं। और कैसे क्या आप ठीक है? बात है, मौला से और मांगता तो और मिल जाता फिर। अच्छा जी कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल करम है अल्लाह पाक। कैसा लग रहा है आज आपके घर पे हम हाजिर हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे यकीन है मैं अब्दुल हबीब ही हूँ? कैसे हाँ? पहचाना आपने अब्दुल हबीब हूँ? आपका आवाज आ रहा है। अच्छा, आवाज आ रहा जी। है, आवाज से पहचान लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, माशाल्लाह। अब कैसे क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी मैं सुबह फजर का नमाज पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद फिर
आराम करता हूँ, फिर इशराक चार्ज पढ़ के फिर मैं 8:30 बजे मार्केट जाता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद ना वो आलू प्याज का बोरी को छाटता हूँ, अच्छा। गिरा के छाट उठ के छोटा अलग करता हूँ, बड़ा अलग करता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद ये हो जाता है, माल को डाल उल के फिर आवाज वगैरह लगाता हूँ, ये फलाना इतना रुपये किलो, फलाना इतना रुपये किलो। अच्छा जी। फिर अगर सेट अगर आगे थोड़ा सा आगे रहता है सब्जी का तरफ, फिर तोल भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो आप सेठ के साथ काम करते हैं? जी। अच्छा। पैसा का पहचान नहीं है ना मुझे, बाकी मैं सब काम कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फिर ये हो जाता है, फिर वहाँ से फिर 1 बजे 1:30 बजे मैं आता हूँ। आने के बाद फिर फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, नहाने के बाद खाना खा के फिर ये आराम करता हूँ, फिर नमाज असर, फिर नमाज असर पढ़ के फिर नमाज मगरिब पढ़ के उसके बाद फिर एक जगह और काम होता है। अच्छा। हमारे इस्लामी भाई वो देखे हैं उस जगह। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं आप? वहाँ मुर्गी का पाँव होता है ना, मुर्गी का पैर, उसको छिलता हूँ, साफ करता हूँ। दो जगह क्यों काम करते हैं? बस चलता है गाड़ी, यहाँ से 100 रुपया मिलता है, यहाँ से 150 मिलता है। सुबह वाले काम में 150 रुपए मिलते हैं? नहीं। हाँ? वो 100 रुपया देते हैं। अच्छा। और ये वाला पाया वाला जो देते हैं ना, ये 150 देते हैं, काम ज्यादा होता है तो 180 रुपया दे देते हैं। जी भाई। तो ये तो दोनों मिला के तकरीबन 250 रुपए हुए, तो ये तो महीने के 7,500 रुपए हुए। बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हमने इनसे पूछा कि अगर आप बात करो, अगर अब्दुल हबीब भाई डायरेक्ट आ जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ बिठाऊंगा मैं। अल्लाह चेहरे की रौनक बता रही है आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप मतलब चैनल पे कैसे पहचान लेते हैं कि किसका सिलसिला आ रहा है, और यानी ये कौन मुबल्लिग है, आप कैसे पहचानते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले आपका आता था, उसके बाद फिर हाजी अमीन अत्तारी का बयान आता था, समझे? जुमे को जी, उससे भी सुनता था। अच्छा जी। तो आपको पता चल जाता है किसका बयान है, आवाज किसकी है? जी। अच्छा। हाजी इमरान अत्तारी का भी सुनता हूँ। अच्छा जी। मदनी चैनल के जरिए सुनते हैं या मोबाइल वगैरह के जरिए सुनते हैं? मदनी चैनल से सुनता हूँ। अच्छा। अपने कमरे में लगाया है आपने? हाँ। मुझे नहीं चलाने आती है ना मोबाइल वगैरह, ये सब नहीं आती है मुझे चलाने। ठीक है, तो मतलब कौन सा सिलसिला मदनी चैनल का बहुत पसंद है? हमको मदनी चैनल का सबसे अच्छा लगता है, अगर देखा जाए तो पहला जैनी आजमाइश, मगर सबसे अव्वल तो वो है ना मदनी मुजाकरा, अव्वल है वो मेरा पीर मुर्शिद की है, सारा फैजानी उन्हीं का। अल्लाह उनके दर्जा को और बुलंद अता फरमाए, उम्र खैर अता फरमाए, मुश्किलात को दूर फरमाए, मौला करीम हर बुरी नजर से बचाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी जिस्मानी रूहानी बीमारी दुख दर्द को दूर फरमा के उनको राहत सकून अता फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि। चलिए अब आपसे आपकी शुरू की बात करते हैं। आप माहौल में कैसे आए, दावत इस्लामी का माहौल कैसे मिला आपको? जी, दावत इस्लामी का माहौल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मिला, ये बैतुल नूर मस्जिद में गमखार इज्तिमा हुआ था, उसमें आए थे, तो उसमें आए तो उसी में मुझे बहुत प्यारा लगा ना, हम बोले चलो। कितना टाइम पहले? ये बैतुल नूर में हुआ था, ये तकरीबन हो गया 7-8 साल हो रहा, समझे उसमें। अब बाकी उससे पहले पढ़ता था वगैरह, नमाज वगैरह सब तो था, मगर इमामत सिर्फ मैं उस टाइम से सजा रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, आपकी बिनाई बचपन से नहीं है? जी, बचपन में मैं सही था, समझे। ये आँख में ना गुल्ली लगी थी ना, इसमें ये तो बह गई, और इसमें थोड़ी सी ना मोतिया थी ना, तो जब इसमें लगी ना, कितनी उम्र में? ये 11 साल की उम्र में। अच्छा जी। फिर उसके बाद ना मेरे माँ बाप ने फुल कोशिश किए थे, हाजी हबीब भाई, समझे, फुल कोशिश किए थे, बस जो होना था हो गया बस। यानी 11 साल की उम्र तक सब दिखता था, अब आपको नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, हल्का भी नहीं दिखता? अच्छा। न सूख गई ना। अच्छा, उसके बाद क्या आपने शादी वगैरह भी की? नहीं हाजी हबीब। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरा 34 है। 34 साल आपकी। जी। तो ये आप काम कब से कर रहे हैं? ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह
7 साल हो गया होगा, 7-8। अच्छा, कितने भाई हैं आप? मैं तीन भाई हूँ, एक और एक भाई है खुशूसी है वो भी। हो कोई भी हाल दिल में हो सदा शुक्र खुदा, दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा। पहले तो ये आलू को भी आपने कहा कि आप छांट लेते हैं, तो ये कैसे छांटते हैं, पता कैसे चलता है? पता चल जाता है, बड़ा बड़ा ये होता है, कट भी आता तो समझ में आ जाता है। ऐसे है नहीं, वरना मैं दिखाता हूँ। अच्छा। या मैं टोकरी लेके आ जाऊँ अपना घर वाला, आलू प्याज वाला बोले तो। अच्छा, नहीं तो फिर आप उसमें ये सारा करते हैं जी। रोजाना कितने किलो आलू को आप करते हैं ऐसा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ना 2 बोरी आलू होता, 2 बोरी प्याज होता है। छोटा बड़ा अलग करते हैं? हाँ, अलग करता हूँ, लगाता हूँ, फिर उसके बाद आवाज भी लगाता हूँ। ये 50 का 2.5 किलो, 50 का 2.5 किलो, कितना चाहिए। तो वो जो लेने वाला है वो ये नहीं कहता ये तो नाबीना है, इसके तो सामने से उठा के ले जाएंगे, पता नहीं चलेगा? नहीं, सेट होता है ना मालिक। मतलब ये सिर्फ आवाजें लगा के सेल करते हैं और काउंटर पे कोई और होता है? ये तो कहते तोल भी मैं लेता हूँ। हाँ, तोलते कैसे हैं? तोल लेता हूँ, कांटा होता है ना। तो आपको पता होता है ये बट्टा कितने का है, 1 किलो का है, आधे किलो का है? जी, तो आके पकड़ लेता हूँ। क्या बात। छोटा होता है तो समझ में आ जाता है ये पाव का है, उससे बड़ा होता है ये समझ में आ जाता है ये आधा तो किलो आजकल का। क्या रेट चल रहा है आलू का? आलू का अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो हम लोग आज तो बेचे 50 का 2 किलो नया आलू। अच्छा, 50 का 2 किलो, तो 1 किलो कितने का हुआ? 1 किलो 25 का हुआ। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, और प्याज का रेट क्या है? प्याज का हम लोग बड़ा वाला बेचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 50 का, और उससे छोटा वाला बेचा हूँ 40 का। सही है जी। तो ये प्याज जो है ये आपको हिसाब किताब आता है नहीं आता? हाँ, कर लेता हूँ। अच्छा, हिसाब कर लेते हैं। जी। तो अगर 50 रुपए किलो प्याज हो तो 10 किलो कितने की होगी? 50 किलो प्याज हो, 50 रुपए किलो प्याज है तो हाँ। 10 किलो कितने की होगी? 10 किलो कितने की होगी, इतना भी तो नहीं कर अच्छा, सकते। 10 किलो वाला कोई आता ही नहीं है। तो चले 5 किलो कितने की होगी? 5 की अगर ऐसे हिसाब करे तो समझ जाइए 100, 200, ये हो गया 250। हाँ ठीक है ना, 50 रुपए किलो है तो 5 किलो 250 का हो गया ना। तो अब 10 किलो कितने का हो गया? 250 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, समझ जाइए भाई 5 किलो के 250 हुए तो हाँ। 10 किलो के डबल कर लो ना, कितने हो गए? 250 और 250 कितने होते हैं? 250 ये हो गए 500। 500। नाज़रीन आपको दिखाते हैं हमारे अकबर अली आलू कैसे अलग करते हैं, प्याज कैसे अलग करते हैं और कैसे सौदा बेचते हैं। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। ये आज का जो हमारा सिलसिला है बहुत सौ के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए, जो हिम्मत हार जाते हैं, जो रोजी के मामलात में शिकार रहते हैं। कई माह से लोग कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, कुछ चीजों के लिए निकलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कोई कारोबार छोटा नहीं होता, हिम्मत करे इंसान। आज ये माशाल्लाह अली अकबर भाई हम सब के लिए एक जबरदस्त इंस्पिरेशन है और इंशाल्लाह मजीद आपको बताते हैं। अभी तो आलू प्याज की उस तरफ चलते हैं मार्केट में, और अगला काम जो रात को करते हैं उस पर भी इनसे बात करते हैं। लेकिन पहले जवाब दुरुस्त दिया है, 10 किलो के 500 रुपए बनते हैं, तो अब आप 10 किलो की आवाज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलें ये ले लीजिए, आपके लिए तोहफा है। पता है इसमें क्या क्या है? इसमें माशाल्लाह गिलाफे काबा भी है, पानियों का मजमुआ, मुबारक पानियों का मजमुआ है, तस्बीह मदीना, जालियों वाला कपड़ा भी है। ये सब कब्र में साथ ले जाने वाले तोहफे हैं इंशाल्लाह। बस ज़हनी आजमाइश में जो हम देते हैं ना वो आपके घर में आ गए माशाल्लाह। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। साहब इनको अभी भी ना मतलब ये यकीन नहीं आ रहा है कि अब्दुल हबीब का मेरा नाम अब्दुल हबीब ही है भाई, अब्बू से पूछ लो। ये तो मुझे ठीक है, हम पहचान लिया अच्छा। साहब। हम भी किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, महीनों गुजर जाते, कभी देखा नहीं होता उसको, तो इंसान अपने जहन में उसका शक्ल बना लेता है ना कि यार ये ऐसा होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि जब हम अरसे बाद उससे मिलते हैं तो वो वैसा नहीं होता, कुछ और चेहरा सामने आता है। मैं तो फोन पे समझता था वैसे होंगे, तो आप तो मुझे नहीं देख पाते, सुना है आपने, तो आपने क्या ऐसा बनाया कि कैसे अब्दुल हबीब जिसकी मैं आवाज सुनता हूँ वो कैसा लगता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपका रंग साफ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह पाक आपको निखार में और बरकत डाले अज़्ज़ा व जल। और क्या आपने सोचा है? फिर उसके बाद बहुत मोटा सा हूँ मैं? नहीं। अच्छा मोटा नहीं हूँ, बहुत दुबला पतला हूँ?
नहीं वो भी नहीं है, अच्छा। रोलमल है। अच्छा नॉर्मल है। बहुत लंबा हूँ मैं? लंबा तो नहीं है, मेरी कद के आप है। अच्छा, ये कैसे सब चीजें आपको पता चल रही हैं भाई? मैं बोला ना अपने दिल से मैं बंदे को कैच कर रहा हूँ। क्या बात है। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना आप रोजाना? अल्हम्दुलिल्लाह 313 दफा पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह। हाँ, फिर उसके बाद थकावट हो जाता है ना, 5 313 नमाजें पढ़ते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इशराक चाश भी आपने कहा पढ़ते हैं जी माशाल्लाह। जी। ये फजर की नमाज के लिए भी ऐसा जमात के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं। अल्लाह, आपके लिए एक और तोहफा मिला है। चले भाई, ये तो मदीने का हरमैन का तोहफा हो गया, ये आपके लिए कराची की सौगात, कुछ मिठाइयाँ हैं आपके और आपके घर वालों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर साहब, क्या आप आगे मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है हाजी हबीब भाई। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह पाक आपकी आल औलाद पर भी रहमत की नजर। आपकी दुआएं लेने में आया था, आप बस दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आपको पता ना मेरे अम्मी अब्बू का भी इंतकाल हो गया है, आपने दुआ करनी है। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, खातून जन्नत हजरत फातिमा के कदमों में जगह अता फरमाया। हाजी हबीब अत्तारी भाई के वालिद साहब को आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमाया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तमाम जो अगर गलती खता हुआ तो उसे माफ फरमा के अल्लाह अज़्ज़ा वजल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़ात उनके हाथों से जामे कौसर अता फरमाना। अच्छा, फजर के लिए खुद जाते हैं तो रास्ते में तकलीफ नहीं होती? रास्ता कैसे ढूंढते हैं? चल जाते, वो है छड़ी है, छड़ी से पता चल जाता है मस्जिद किस तरफ है, गली कौन सी है? जी नहीं, ये छड़ी से ये पता चलता है अगर कुछ लोहा आ गया या कोई पत्थर का ऊंचाई चबूतरा होता है वो आ गया, या कोई गाड़ी आ गया, नहीं तो वो जिस गली में आपने जाना है या कितने कदम बाद मस्जिद है वो कैसे पता चलता है? वो बस चलते रहता हूँ, अचानक मेरा दिल मुड़ जाता है, मैं भी मुड़ जाता हूँ, फिर चलते रहता हूँ, फिर एक मदीना मस्जिद तक पहुँचता हूँ, वहाँ एक जम आता है, जम के बाद फिर आगे समझो गेट है मस्जिद। माशाल्लाह। नाज़रीन, किस तरह अली अकबर नमाज के लिए जाते हैं, मस्जिद तक पहुँचते कैसे हैं, रास्ता कैसे तलाश करते हैं, आइए आपको मनाज़िर दिखाते हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये कितनी बड़ी बात है। आज अल्लाह ने मुझे और आपको आंखें दी हैं, आज हमारे लिए मस्जिदों की बड़ी आसानियां हैं, सहूलतें हैं, मगर फिर भी कौन है जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है? आज हमारी जमात तो दूर की बात है, फर्ज नमाजें लोगों की कज़ा हो जाती हैं। ऐसा ना करें बराए करम। ये लोग हम सब के लिए यूं समझिए कि झंझोड़ने के लिए काफी हैं, अपने काम काज भी कर रहे हैं, ये भी चाहते अल्लाह ना करे, वरना हमने देखा है कि बंदा थोड़ा सा किसी माजूरी में आ जाए तो मांगने लग जाते हैं। ये भी मांग सकते थे, लेकिन देख कितनी खुददारी है इनके अंदर। सुबह फजर के बाद जाकर काम करना, रात को फिर जाके काम करना। यकीन करें ये वो बातें हैं जो बोलना तो बहुत आसान है, आंखें ना होकर ये सब करना और फिर भी मुस्कुराना, नमाजें पढ़ना, फिर भी ये एनर्जी, लोगों की चेहरे से मुस्कुराहट ही खत्म हो जाती है, मगर इनकी मैं देख रहा हूँ मुस्कुराहट ही खत्म नहीं होती है। ये है सुकून। लोग कहते हैं ना बहुत पैसा होना चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो, मुलाजमीन हो तो बरकत है। ये बरकत है कि थोड़ा है मगर सुकून है। माशाअल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट है, इत्मीनान है। ये याद रख लीजिए कि बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। अगर थोड़ा है और रब राजी है, हलाल का है, इसमें बहुत बरकत है। करोड़ों रुपए हैं और सेहत ही नहीं है, परेशानियां हैं और हराम का है, वो बरकत वाला नहीं है। वालिद साहब से बात करते हैं, फिर हमने अभी अली अकबर की रात की एक्टिविटी भी कवर करनी है। जी हुजूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? वालिद साहब हैं इनके जी। आपकी क्या मसरूफियात हैं? नौकरी आपकी नहीं है? अच्छा, पहले कहाँ नौकरी करते थे? पाइप फैक्ट्री में। अच्छा, तो कब रिटायर हुए? रिटायर हो गया 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अब आपके घर में काम करने वाला कौन कौन है? अभी काम करने वाला कोई नहीं। अच्छा, मैं भी काम ढूंढने जाता हूँ। सही है। जब तक था तब तक ये लोग का ऐश था। ठीक है, आप कमाते थे और ये लोग खा लेते थे। हाँ, अब खा लेते था। ठीक है। अब बच्चे हैं, वो प्याज आलू लेके आता, तो उसी में से खर्चा पानी हमको भी दे देता। अच्छा, वो 25 रुपया पकड़ लीजिए, 20 रुपया पकड़ लीजिए। अल्लाह, यानी ये जो लाते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको भी देते हैं? हाँ। अच्छा, तो बाकी फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का मतलब ऐसे, मतलब
अल्लाह ताला पूरा कर ही देता है। नीचे क्या लगा है? नीचे किराया लगा है। किराए पे लगा दिया। कितना किराया आता है नीचे से? नीचे 7,000 रुपया। अच्छा 7,000 किराया। घर आपका अपना है? घर अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्शिद का करम। यही तो मैंने इन लोगों के लिए कर दिया। नहीं, ये अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि घर आपका। एक पागली लड़का, एक नबीना है, एक ये है, काम सीख रहा है। ठीक है। ये कितने कमा के लाते हैं? ये नहीं काम सीख रहा है। अच्छा, अभी सीख रहा है। तो रहता भी वहीं औरंगी टाउन में? औरंगी टाउन में। आप क्या चाहते हैं इनके लिए, हम क्या करें? बस कुछ कर दीजिए बस। ये तो जो क्योंकि मेरा मरने के बाद ना ऐसा ना हो कि किसी के पास हाथ नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करेगा। किसी क्या देखिए अभी ये तो अभी नहीं हुआ, अभी हाथ अभी आगे भी क्यों हाथ फैलाएंगे? फिर भी खर्चा पानी हमको देता है। हाँ, ये बड़ी बात है ना। नाजरीन, अब कैसी जिंदगी लोग गुजारते हैं, कितने थोड़े पैसों में जिंदगी गुजारते हैं और कितने लोगों के कितने मसाइल हैं। मतलब आप मुझे बताएं कि शायद इससे बहुत ज्यादा कमाने वाले मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है इससे कम कमाने वाले भी हो, इससे मुश्किल वाले भी हो, लेकिन मैं पहले तो उनसे बात कर लूँ ना कि जो इससे ज्यादा जिनकी आमदनी है, जिनके घर में इस तरह नहीं है। इन वालिद साहब की आप हिम्मत देखें कि एक बेटा नाबीना है और एक बेटा जिसको आप कहें कि ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक है, वो भी जवान बेटा है। अब 2 बेटे के बाद अब तीसरा बेटा है जो काम पे जा रहा है, खुद वो रिटायर हो गए हैं। 6-7 हज़ार रुपये इनकी आमदनी है, 6 हज़ार रुपये घर का किराया, 7 हज़ार रुपये आता है। आज के दौर में 14-15 हज़ार रुपये में कैसे घर चलता होगा, कैसे गुजारा होता होगा, इलेक्ट्रिक का बिल भी आता होगा और भी कुछ काम होते होंगे। आपकी हिम्मत है माशाल्लाह। और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि ये लोग इतने पैसों में भी मांगने के लिए नहीं निकले हैं। अब वो लोग सोचें कि जो इससे ज्यादा कमा रहे होते हैं और शिकवाई जबान पर खत्म नहीं होता है और लोगों के आगे मांगने पहुंच जाते हैं। अल्लाह पाक इनके घराने को बरकत दे, रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए। हम इंशाल्लाह, मैं नियत कर चुका हूं लेकिन हर चीज को ऑन एयर नहीं बयान किया जाता। इंशाल्लाह इस घराने में इंशाल्लाह खुशियां आएंगी, इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें अल्लाह ने चाहा तो आसान होंगी। अब मैं जरा चलता हूँ फिर अली अकबर की तरफ। अली अकबर, ये बताओ बेटा, अब रात को आप बताते हैं कि एक और काम करते हैं शाम मगरिब के बाद, वो क्या करते हैं? वो मुर्गी का पाँव वगैरह होता है उसको छिलता हूँ। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं? ये हमारे साथ ना 2 कारीगर होता है ना, एक कारीगर होता है मूसा कॉलोनी से ना मुर्गी का पाया वगैरह लेके आता है, फिर उसको गर्म पानी में फुलाता है, ड्रम में फुला के फिर उसको पका के मुझे देता है। तो आपका हाथ में गर्म पानी नहीं लगता? नहीं, क्यों लगे, हाथ में मोजे पहनते हैं? नहीं। तो कितना गर्म होता है वो पानी? हो जाता सुसुम गरम होता है। अच्छा, गरम होता है। हाँ, अच्छा, सुसुम होता है। सुसुम किसको बोलते हैं? हल्का। अच्छा, सुसुम कम। अच्छा जी ठीक। फिर मैं उसको पूछता हूँ, सही से साफ करके दूसरे ड्रम में दूसरे ड्रम में डाल देते। ठीक है, फिर उसके बाद वो डालता हूँ। तो वो क्या करते हैं मुर्गी के पाँव? ये सूप वगैरह जो पी रहे ना लोग, हाँ, ये कैसे पी रहे हैं? अच्छा, मुर्गी के पाँव का सूप पी रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं मुर्गी का सूप पी रहे हैं। मुर्गी का भी पीते हैं, पीने वाले पी रहे हैं, मुर्गी का पाए के भी सूप पी रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर मुर्गी का पाए का पीते हैं। अच्छा, चलें जनाब, मुर्गी के पाए के साथ अली अकबर क्या करते हैं वो भी आपको दिखा दें। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। अच्छा, अब ये देखा आपने कि मेहनत यहाँ भी हो रही है, रात को जाकर भी काम। यहाँ से आपको 150 रुपए मिलते हैं शायद? जी, 150 यहाँ से मिलते हैं। कभी अगर काम ज्यादा हो गया, जैसे 60-70 किलो पाया होता है, हाँ, तो फिर सेट हमको 180 रुपए। कितनी देर का ये काम होता है रात वाला? ये रात वाला काम होता है 3 घंटे का। अच्छा, 3 घंटे में मैं निपटा देता हूँ। अगर सुबह भी 2-3 घंटे, शाम भी 2-3 घंटे लगते हैं? नहीं, सुबह 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। और 100 रुपये मिलता है? 100 रुपया मिलता है। और यहाँ पर ही पाया वाले का पास रहता हूँ, ये हमें देता है 150 रुपया। का नमाज पढ़ के मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद काम में जो लगता हूँ। मिसाल के तौर पे बाबा जी आपसे पूछ रहा हूँ, इनको ये फल वल ये सब्जी अलग करने तो आता है, अगर एक सब्जी का ठेला लगा दिया जाए इनको, पैसा का पहचान नहीं, तो पैसे के पहचान अब्बू को है ना। अगर अब्बू उस पैसे को गिन लें और आप सब्जी छांट लें, आलू छांट लें, तो आपको लगता है कि जितने आप कमाते हैं उससे ज्यादा कमा लेंगे? मंडी से कितने का आता है ये आलू? होता है इसमें, इनका काम नहीं, अब्बू नहीं कर सकेंगे, थकावट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको सांस फूलता है। नहीं तो हम इसके लिए ऐसा क्या कर दें
کہ جو یہ کسی کے پاس جا کر مزدوری کرتا ہے، اگر ان کے پاس اپنا ٹھیلا ہو اور یہ اپنا فروٹ رکھیں، اپنی سبزی رکھیں اور ایک جگہ ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے ان کو کہ لوگ آئیں اور ان سے خرید کے جائیں، تو یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. یہ بیٹے تو آپ بتا رہے ہیں کچھ اور سیکھ رہے ہیں، یہ نائی کے کام سے، یہ نائی کا کام سیکھ رہا ہے. چلے وہ بھی ٹھیک ہے، میں ہنر آنا چاہیے. میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے کہ جس سے آپ کا تھوڑا سا آمدنی بڑھ جائے؟ میں نے سوچا تھا، جب دیکھا نا پوزیشن، ہم نے بولے ایسے تو گزارا ہوگا نہیں. اس سے پہلے میں نے اپنا خود کاروبار کیا تھا، اچھا. آلو پیاز کا. اچھا. تو جس کو میں نے رکھا نا، جیسے میں نے 1000 روپیہ کا کام کیا تو مجھے ملتا تھا 800، باقی گول ہو جاتا تھا. اب اس میں وہ اگلا جس کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوتا اس کو مزدوری بھی دینا ہوتا. اللہ، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں چلتا تھا کتنے پیسے آئے تو وہ کم ہو جاتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں، آلو پیاز ہم لوگوں نے لگایا ہوا تھا، مارکیٹ میں نے بیچ کے آیا، میں نے 2000-3000 روپیہ بیچ دیا. اور جب میں ڈیوٹی سے 11 بجے رات کو آ رہا ہوں نا، ہم بولے اکبر، ہاں بیٹا بکری کتنا ہوا؟ بڑے ڈبے میں تھا ابو. ٹھیک ہے، پیسہ لاؤ، حساب تو دیں گے نا. صحیح ہے. حساب کر رہے تو 3000 بیچ کے گئے تھا. ٹھیلا میں آلو بھی نہیں ہے، پیاز بھی نہیں ہے، پیسہ گیا کہاں؟ اللہ، یعنی پیسے کم ہو جاتے تھے. ہاں یہ ہے. اللہ، کوئی نکال کے لے جاتا تھا. ہاں نکال وہی جو ہوتا تھا. ہم نے بولا بس بند کرو ٹھیلا. ہمارے پاس ٹھیلا بھی پڑی ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے، آنکھ والے تھے مگر دل والے نہیں تھے، دل اور بے آنکھ والے کے پیسے لے جاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ بس اللہ پاک ہدایت دے. اللہ پاک ہدایت دے. ناظرین، یہ جو سلسلہ ہمدردی ہے، یہ واقعی بہت سارے جس کے پہلو ہیں، بہت سارے اس کے ڈائمنشنز ہیں. آنکھیں ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کاش مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے. یہ کروڑوں میں بھی نہیں ملتی. یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں. آنکھ نہیں ہے تو کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کوئی تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، اور پھر غربت ایک الگ مشکل ہے. پھر بھی میں نے ہمت بنا تھا. ہم بولے اکبر، وہ پیسہ جو رکھا ہوا نا، میں اپنا ذاتی پیسہ اپنا یہ کے لیے رکھا تھا. ہم بولے بھائی ایسا کام کر. اس آدمی کو میں نے دیا پیسہ کہ جا منڈی سے آلو پیاز اٹھا کے لے کے آ جانا. اب میرا ڈیوٹی صبح کا ہو گیا. اب اس کو دیا میں نے کتنا، 13,000 روپیہ. وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. اللہ. جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں. علی اکبر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین سے؟ آج آپ کی کیفیت تو ہے کہ آج ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آپ خوش بھی بہت ہیں، مگر آپ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی معذوری ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میری تو ناقص مشورہ یہی ہے، شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کوشش کریے. کوشش کرنے سے کیا نہیں مل جاتا ہے، سب چیز مل جاتا ہے. باقی اللہ عز و جل سے لو لگا کے رکھیے. میری ناقص مشورہ یہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ دعوت اسلامی کے کسی کام میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کوئی درس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں مسجد وغیرہ میں یا اجتماع وغیرہ میں جاتے ہیں؟ الحمدللہ میں اجتماع کا پابند ہوں. اور کب جاتے ہیں اجتماع میں؟ ہر جمعرات. کتنے بجے؟ میں مغرب کے بعد میں یہاں سے گاڑی جاتی ہے، میں مغرب کے بعد میں چل جاتا کہاں ہوں. جاتے ہیں اجتماع میں؟ میں پہلے کرنگی 4 رضائے مصطفیٰ مسجد میں ہوتا تھا، پھر وہاں سے ریٹرن ہو کے پھر یہ آ گیا عبداللہ گوٹ. ہاں، عثمانیہ مسجد. پہلے اجتماع میں میری حاضری ہوئی تھی. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہاں جاتے ہیں آپ جمعرات کو، لیکن پھر جمعرات کی رات وہ مرغی والا کام پھر کیسے ہوتا ہے؟ اس دن میں چھٹی کرتا ہوں. اچھا جی. آپ اس دن کی جو آپ کی پھر مزدوری ہے وہ کٹ جاتی ہے؟ ہاں. تو کیوں چھٹی کرتے ہو؟ پیسے کم ہو جاتے ہیں؟ دینے والا وہی ہے. اللہ، یعنی ہر جمعرات آپ اس کام کو چھوڑ کر صرف اجتماع کے لیے جاتے ہیں؟ جی. ہائے ہائے ہائے. یہ یقین کریں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جس میں کہتے ہیں نا بندہ خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں. جس کی آمدنی ہی اتنی تھوڑی ہو وہ ہر جمعرات کو اس آمدنی کو کٹ آف کر کے بھی اجتماع کی پابندی کرے. اور آپ وہاں سن ہی سکتے ہوں گے، دیکھ تو سکتے بھی نہیں ہوں گے. پھر کیا ملتا ہے آپ کو وہاں پر؟ یہ مل جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے، سیکھنا سکھانے کا ہلکا لگتا ہے تو سورہ وغیرہ بھی سن لیتا ہوں، سن کے اس سے بھی یاد کر لیتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں. جو بات اچھا لگتا ہے اسے دل دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اسے یاد رہے آگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجتماع کی برکت سے مالک و مولا عز و جل اس گھر میں امن ہے، سکون ہے، اتفاقی ہے، محبت ہے. اس سب اجتماع کچھ کی عیدی آپ برکت کے لیے ہے. میں لایا ہوں، یہ عیدی بھی آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں اور برکت دے، اور آپ کا جو ماشاءاللہ جذبہ ہے
وہ یقین کریں ہمارے کئی لوگوں کے لیے ایک ایسی وہ جو ہے نا جس کو کہیں کہ انسپریشن ہے، ایک ایسا ترغیب ہے کہ جو اجتماع میں نہیں آتے، جو یہ شکوہ کرتے ہیں میرے جاب کا مسئلہ ہے میں اس لیے مدنی قافلے میں نہیں جاتا، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے میں اس لیے نہیں جاتا، اور ایک ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتایا ہے، ان کی آمدنی کے ذریعے بھی ہم نے سنے ہیں، ان کی تکلیف بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ ان کے والد صاحب کو شفا بھی دے، ناظرین بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ ہم مزید ان سے رابطے میں رہیں گے۔ ہماری نیت یہ بھی ہے ناظرین کہ آپ بھی سن رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اس گھر کے لیے میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں، آپ کے آس پاس ہی دیکھ لیجیے، بہت تکلیف میں ہیں لوگ، غریب ہیں لوگ، آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے آس پاس مسلمانوں پر نظر دوڑائیے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے دے کر ہی کسی کو خوشی دی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اب علی اکبر کے چہرے پہ جو خوشی ہے وہ میرے پیسے دینے سے نہیں ہے، صرف ان کے گھر آنے سے۔ آپ کسی کے گھر چلے جائیں، کسی سے ملاقات کر لیں، میٹھے بول بول لیں۔ ابھی تک تو علی اکبر نے چائے کا بھی نہیں پوچھا مجھے۔ الحمدللہ، ولیہ حکم کریے، چائے کافی کچھ بھی، ولیہ حکم۔ نہیں انشاءاللہ آپ کی چائے بھی پیئیں گے انشاءاللہ۔ ابو نہیں ایک منٹ، چائے بولیے نا کرنا۔ نہیں میں بغیر چینی والی چائے پیتا ہوں۔ چائے میں آپ کے گھر کی چائے ضرور پیوں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ بغیر پیے چلے گئے۔ ایک بار میں قافلے میں کبھی گئے؟ الحمدللہ عز و جل۔ اچھا جی ابھی تو محرم میں ہو کے آیا ہوں میرپور خاص سے۔ اچھا واہ بھائی واہ، تو 3 دن قافلے میں گئے تھے؟ جی تو آپ کو لے جاتے ہیں مطلب قافلے والے پھر ساتھ بھی دیتے ہیں آپ کو، وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا تو باقی سارے ہاں معاملات؟ پکڑے گا تو اس وہ انجان جگہ ہوتا ہے نا، اچھا۔ انجان جگہ تو بیساکھی کا کام نہیں ہوگا۔ اچھا لیکن وہ آپ کو خرچہ بھی لیتے ہیں آپ سے یا آپ کو فری میں لے جاتے ہیں؟ نہیں خرچہ ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ بھی کرتے ہیں خرچہ؟ جی۔ کتنا خرچہ ہوا قافلے میں؟ الحمدللہ 1000 روپیہ لیا تھا۔ آپ نے 1000 روپے دیے؟ جی۔ اچھا، اور وہ 3 دن آپ کا کام بھی نہیں ہوا؟ 3 دن تو کام بھی نہیں، اس کے پیسے بھی نہیں ملے نا جو کام آپ کا نہیں ہوا، 150 روپے اور 100 روپے؟ جی ارے نہیں چھوڑیے، ہم اس کی لالچ سے نہیں دیا ہوں۔ امام حسین کا چاہنے والا ہوں، الحمدللہ اہل بیت کو چاہنے والا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ عبادت جو کچھ بھی کیا مالک و مولا اہل بیت کے گھرانے میں سارا ایسا ثواب پہنچے مالک۔ آپ کو ابو منع نہیں کرتے کیوں جا رہے ہو قافلے میں، پیسے کدھر سے آئیں گے پھر؟ ارے کیوں منع کریں گے کسی؟ اللہ کے راہ میں روکنا صحیح نہیں ہے، برا جگہ روکو۔ ابو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جمعرات اجتماع میں چلے جاتے ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا؟ نہیں۔ اچھا ایک مہربانی کریں گے، آج آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہے نا، اب یہ چہرے پہ داڑھی جو ہے نا یہ پوری کر لیں، ایک مٹھی پوری۔ آپ شروع تو کر ہی دی ہے، اب اس کو چھوڑ دیں، ایک مٹھی پوری ہو جائے اس کے بعد کاٹیں گے، ایک مٹھی سے پہلے نہیں کاٹیں۔ بڑا ہو گیا تھا ایک مٹھی پوری، پھر دوبارہ کاٹا۔ سنت ہے نا، جو اس سے کم کٹوانا گناہ ہے نا، تو اب نہیں کٹوائیں گے۔ پکا ہو گیا؟ چلو آج کے بعد پوری داڑھی ہوگی۔ چلو مبارک ہو، آپ کے ابو نے ہمیں داڑھی کا تحفہ دے دیا۔ آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے بھائی؟ سبحان اللہ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا کام کر رہے نا بھائی، اچھی بات۔ سنت رسول یہ قبر کا نور ہے، نور ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، یہ قبر میں جا کر انشاءاللہ چراغ کا کام کرے گی جس کی چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ ناظرین اب آپ سے بھی گزارش ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے آقا کی سنت سجا لیں گی، سنت قبر میں بھی ساتھ جائے گی انشاءاللہ۔ اور قبر میں جس آقا کا دیدار ہونا ہے نا وہ بھی داڑھی والے ہیں، تو انشاءاللہ داڑھی لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا دیدار بھی کریں گے۔ چلیں آپ کو نعت شریف جو آتی ہے اس کے 2-3 شعر سنائیں۔ آقا کا بول بندے، آقا کا بول، آقا کا بول بندے، آقا کا بول، آقا کا بول بندے، آقا کا بول، ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول، آقا کا بول بندے، آقا کا بول۔ جی کیسے ہیں علی اکبر بھائی؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ ٹیلی فون بات کر رہے، صرف ٹیلی فون بات ہوگی کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ ایسے اچانک آ جائیں گے وہ؟ بس یہ مولا کرم نے فرمایا، جو آئے ہمارے گھر میں، آپ نے ان سے دعائیں بھی لی، ہاتھ بھی ملایا، برکتیں بھی لی، کیا کیفیت ہے آپ کی؟
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं अपनी। आप तो आप आपके वालिद साहब से पूछते हैं, जी हजरत आपकी क्या कैफियत है? ये तो मैं खुद नसीब हूँ कि ऐसा आदमी आ गया हमारे घर। जिनका सिलसिला देखता हूँ कभी मेरे घर में अचानक आ जाएंगे, मेरे घर में आके चाय भी पियेंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो गमान भी नहीं था, सोचा भी नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। ये तो हमारे खुश नसीब था। हमारे घर में तशरीफ लाए हाजी हबीब अत्तारी, माशाल्लाह से बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आए। अल्लाह पाक उनसे भी राजी हो जाए। आज हम जिन इस्लामी भाई के पास गए, अकबर अली अत्तारी नानन का, जिस तरह से माशाल्लाह ये इस माजूरी के आलम में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, ये हम सब के लिए भाई साहब क्या फरमाते हैं आप? एक्चुअली आई एम टोटली शॉक्ड। मैं सच्ची बात है जिसको कहना कि कभी कभी इंसान स्पीचलेस हो जाता है, अल्फाज ही नहीं होते। यानी ये कमाल है कि सुबह 8:30 से 1 बजे तक आवाज़ें लगाना, आलू छीलना, आलू की वो साइजिंग अलग अलग करना और 100 रुपये मिलना। 100 रुपये आज के दौर में क्या चीज़ है? 150 रुपये रात वो पता नहीं क्या बता रहे थे, इतना बड़ा मुर्गी के वो पाए का काम करते हैं। तो आप सोचें कि ऑल टुगेदर मिला के 250 रुपये की कमाई और 250 रुपये के पैसे के मतलब बना 7,500 रुपये महीना। उसमें उसके वालिद साहब कहते हैं ये मुझे भी देता है आके। चेहरे पे मुस्कुराहट ख़त्म नहीं होती, नमाजें सारी पाबंदी से हैं, इज्तिमा में जाते हैं तो उस दिन अपनी मजदूरी छोड़ देते हैं। काफिले में गए तो बताया 1000 रुपये जेब से दिए और 3 दिन के 750 रुपये तकरीबन जो बनते हैं वो भी गए। यानी मैं समझता हूँ ये 1750 रुपये शायद 17.5 लाख रुपए से ज्यादा है हम में से, हम लोगों के लिए। यानी जिनको अल्लाह ने नवाजा है, हम कितना खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। आसान भाई ये मेरा बिलीफ है और ये बिलीफ मेरा मजबूत होता जा रहा है। यकीन मेरा कि गरीब आदमी का दिल जो है ना बहुत बड़ा होता है। गरीब आदमी यानी अगर आप थोड़ा एवरेज बनाते हैं ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ नाजरीन को, जिस बंदे की 7,500 रुपये महीने की आमदनी हो, अगर वो 1700-1750 रुपये खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ वो अपनी महीने की आमदनी का 25% खर्च कर रहा है। 25% वो 3 दिन में काफिले में खर्च कर गया। ये बोलना आसान है, ये कौन करता है आज के दौर में? आज तो कई लोग दीन के काम में जाते हैं तो कहते हैं पैसे भी आप खर्च करें, अपनी जेब से खर्च करके इस तरह काम करना। यानी ये वो लोग हैं जिनके साथ दावत इस्लामी चल रही है। ये दावत इस्लामी के साथ ऐसे ऐसे मुखलिस लोग हैं, सुभान अल्लाह। जमात से नमाज पढ़ना का जज्बा मिल रहा है, इनकी बातें सुनकर हलाल कमाने का जज्बा मिल रहा है। मैं तो इंफाक फी सबीलिल्लाह और जो तवक्कुल था, मैंने पूछा कि आप जुमेरात को इज्तिमा में जाते हैं 100 रुपये, बोले उसको छोड़ें, उस बात को खत्म, अल्लाह की राह में कुछ दूंगा तो फायदा होगा। यानी ये वो इंफाक फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह पर भरोसा है, यकीन करें ये वो दास्तानें हैं कि जो सुनकर जिसको कहते हैं ना कि ईमान ताज़ा हो जाता है। कि आज के दौर में, ऐसे दौर में कि जहां हर दूसरा आदमी जो शिकवे शिकायत कर रहा है, ये भी लाठी हाथ में लेके रोड पे खड़े हो जाते हैं कि सिग्नल पे पैसे कमा, शायद इससे ज्यादा कमाते। हमारा मसला ये भी है नाजरीन कि हम भिखारियों को जो खास तौर पे प्रोफेशनल होते हैं उनको देते हैं, मगर सफेद पोश लोगों को नहीं देते। इनको देना चाहिए। आप ढूंढें ऐसे लोग जो मांगेंगे नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं कैसे घर चलता होगा। इनके पास कपड़े कितने होते होंगे जब इसकी कमाई पूरे घर की 7,000 रुपए हो और नीचे उनको कमरा किराए पे उन्होंने दिया तो 7,000, 14,000 रुपए में बच्चों वाला घर कैसे चलता होगा। वालिद साहब को सांस की बीमारी है, वो सांस के लिए कैसे उसके लिए दवाइयाँ लेते होंगे। ऐसे लोगों उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। अब आप सोचें कि ये इस तरह के कितने मसाइल। मुझे अब बताएं नाजरीन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप में से कौन इतना गरीब है, आप में से कौन इतना परेशान है। बहरहाल यही इस सिलसिले का मोटिव है, यही इस सिलसिले का थीम है कि मैं भी सीखूं, आप भी सीखें और दूसरों की हमदर्दी दिल में पैदा हो, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा हो। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे सिलसिले से मुझे बहुत खुशी होगी। हम ये नहीं चाहते, हमारी ये अपील नहीं होगी, कोई करना चाहे तो अलग बात है कि इस खानदान की भी कोई मदद करना चाहे, लेकिन हमारा ये सिलसिला इसलिए कि आप खुद अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने खानदान में सब एक एक घर की तो किफालत लेना। किसी गरीब के घर में राशन डाल दें, किसी गरीब की माहाना मदद कर दें, तो ना जाने हम कितने गरीब मुसलमानों का बोझ बांटने वाले, उनकी तकलीफें दूर करने वाले बन जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा, दूर हो मेरी ज़बान और दिल से भी शिकवा गिला।